Hello, all, this is Shakti. Let's start this MCQ series part 2. First question is: a human resource specialist normally collect which of the following information via job analysis? See, what is job analysis? It is analyzing the job. It is a process in which we analyze the job, and the result of job analysis is that we get important information related to a particular job. These informations are then divided or categorized into two things. First, we get job specifications, and second, we get job description. So here the question is related to that only. इससे पूछा यही गया है कि after we have analyzed a certain job, what are the things about that job which we get? So there are two categories. First is job description and second is job specification. Now I won't go deep into this topic. मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी. Here all these options which have been written in this question are related to job specification as well as job description. So the answer here would be third point. It's third. A, B, C, D, E, and F. All the points are related to job analysis. Second question. It's again match the following. There is a Japanese model 5S model जिसको हम हाउस कीपिंग के रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं, स्टोर कीपिंग के रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं. एंड दीज आर दी वर्ड्स इन दैट जापानीज मॉडल एंड उसी का इक्विवेलेंट जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश का. तो हमको जापानीज वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है कौन सा करेक्ट वर्जन है. तो मैं टॉपिक्स, ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस क्वेश्चन सीरीज़ में दिख रहे हैं, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी. एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती. आई वॉन्ट टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो अ शॉर्टर वन. सो द आंसर वुड बी फर्स्ट. फर्स्ट का मतलब है ए का क्या होगा? ए का होगा फिफ्थ, देन बी का फोर्थ, देन सी का सेकंड, देन डी का फर्स्ट एंड देन ए का थर्ड. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. क्वेश्चन थर्ड: विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स अ रिक्रूटिंग yield pyramid? Option first: company records showing present performance and promotability of inside candidates for the most important positions. Second option, a forecasting technique for determining future staff needs by using ratios between, for example, sales volume and number of employees needed. Third option is the historic arithmetic relationship between recruitment leads and invitees and interviews and offers made, and offer accepted. Then fourth is finding and or attracting applicants for the employer's open position. Now recruiting yield pyramid क्या है? It's the historic arithmetic relationship between recruitment leads and invitees, then invitees and interviews, then interviews and offer made, and offer accepted. It's a kind of whole process which have been given under this particular phrase or model. Question fourth: which of the following is or are not correctly matched? ये ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके सब्सिक्वेंट राइट हैंड साइड में वी हैव द ईयर इन विच दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर इस्टेब्लिश और फॉर्म्ड. सो इसको अगर देखें, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देन वी हैव इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देन वी हैव इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, और उसका जो ईयर है वो दिया है. हमको क्या करना है? हमको वो ऑप्शन बताना है जिसमें जो ईयर है एंड दी ऑर्गेनाइजेशन है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है. सो इसमें कौन सा रॉन्ग है वो बताना बेसिकली. सो आंसर वुड बी फोर्थ. इसमें केवल ये वाला क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है और बाकी सब करेक्ट है. अभी ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन का गठन या फॉर्मेशन कब हुआ था?
As per provisions of Building and Other Construction Workers Act 1996, who among the following is the ex officio member in the Central Advisory Committee? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की अगर हम बात करें तो कौन सा, किसको हम एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलते हैं? सो आंसर इज डायरेक्टर जनरल. ये जो वीडियो है या ये जो एक्ट है ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. 6th question. As per the amendment of the Payment of Wages Act 1936 made in 2017, the act shall apply to wages payable to any employed person. तो यहाँ पर ये बताया, पूछा गया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो कौन से एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होगा, मतलब उनका जो वेज लिमिट है कौन से वेज लिमिट वाले एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होगा. तो ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है. 2017 में अमेंड हो चुका था ये एक्ट, और जो न्यू वेज लिमिट था वो बताया गया था. वो क्या था? न्यू वेज लिमिट 24,000. तो इसको ध्यान में रखना. इससे पहले जो वेज लिमिट थी वो क्या थी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए. Question 7th. Which of the following stage of group development will witness the following trend of group members' behavior? So this question is from the topic group dynamics, जिसमें हम पढ़ते हैं how a group is developed or formed. तो उसके stages होते हैं and हर stage में जो members हैं उनका अपना एक behavior pattern होता है. ठीक है, तो इसमें यही पूछा है, एक behavior pattern दिया हुआ है हमको. Just a second. Yes. एक बिहेवियर पैटर्न दिया हुआ, हमको बताना है कि ये कौन सी स्टेज का बिहेवियर पैटर्न है. देन बिहेवियर पैटर्न क्या है? कन्फ्रंट द डिफरेंसेस, फील एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, रिजल्ट फॉर्मल लीडरशिप, लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड हॉस्टिलिटीज. सो द आंसर हेयर वुड बी 2, स्टॉर्मिंग. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट what is the rate of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act 1972? अगर सीजनल इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ग्रेचुटी क्या होगी, और ये एज पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 की बात हो रही है. सो हेयर द आंसर वुड बी 7 days wages for each season. Question 9. The strikes that are intended to put pressure on the government to do something to desist from doing something are categorized at. तो ऐसी स्ट्राइक जिसमें जो स्ट्राइकर्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए, बोथ वेज. तो वो जो स्ट्राइक्स होती हैं वो कौन सी कैटेगरी की स्ट्राइक्स हैं? सो हेयर द आंसर इज पॉलिटिकल स्ट्राइक्स. अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. क्वेश्चन 10th. Who among the following cannot be appointed as an authority by the appropriate government to hear and decide claims arising out of deduction from the wages or delay in payment of wages and penalties for malicious or vexatious claim? So इसमें यही पूछा गया है कि एक जो भी क्लेम्स अराइज हो रहे हैं, क्लेम्स किससे रिलेटेड? डिडक्शन फ्रॉम वेजेस से रिलेटेड, डिले और वेजेस से रिलेटेड, डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड, या एनी सॉर्ट ऑफ मलिशियस क्लेम से रिलेटेड. कोई अगर केसेस आ रहे हैं, कोई अगर ऑफेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उन केसेस को सुनने का अधिकार कौन सी गवर्नमेंट या कौन सी अथॉरिटी के पास है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. Question 11th. The need for labor welfare was also emphasized by the Constitution of India. These are the articles in Indian Constitution. There are articles in the Indian Constitution which contain provisions for labor welfare. Which among the following does not contain provision for the labor welfare? Article 38, Article 39, Article 40 and Article 41. So इसमें यही पूछा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं जो लेबर वेलफेयर से रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा आर्टिकल है ऑप्शन में जो लेबर वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, और वो ऑप्शन कौन सा है? सो हेयर द आंसर इज आर्टिकल 40. अब ये आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. देन टुडे सीरीज लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल मैनिफेस्टो आर ट्रू? सोशल मैनिफेस्टो किसने दिया था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड इससे रिलेटेड जो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं ऑप्शंस में, ये इनमें से कौन सी ट्रू है ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज इट वॉज ड्राफ्टेड बाय सिडनी एंड बियट्रिस वेब. इट वॉज ड्राफ्टेड बाय कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स.
It was drafted by converting capitalist Britain into mixed economy. It was strongly opposed by the Labour Party in Britain. So here the answer is ANC. सो मेरा आपका जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी बता गया है कि ये दिया था सिडनी एंड बेट्रिस वेब ने ये दिया था, और ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी रिलेटेड टू सोशलिस्ट मैनिफेस्टो करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, करेक्ट डेफिनेशंस है, आप बोल सकते हैं. नाउ देयर इज अनदर टर्म विच इज नोन एज कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो. ना ये किसने दिया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा गया है. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. नेक्स्ट सीरीज लेके मैं जल्दी आऊँगी. टिल देन बाय बाय. स्टे कनेक्टेड विथ मी.